Class 12, we are starting with the new topic in the electrochemistry chapter, that is specific resistance or resistivity. It's been written as rho. So this is basically, if you understand this concept of specific resistance or resistivity, it's defined as a resistance of conductance of you can say one conductor of length 1 centimeter and having a area of cross section that is equals to 1 centimeter square. Now what is, you see, this is, suppose this is a conductor and this conductor is it's a particular length is been there. तो इसकी length जो है conductor की it's about 1 centimeter is there. Then area of cross section is been there, that is area of cross section अगर आप देखते हैं area of cross section of it is 1 centimeter square. So resistance will be acting over here, so that is known as your specific resistance. So what did I say? It is defined as the resistance of a conductor of length 1 centimeter and having an area of cross section equal to 1 centimeter square. I think you are clear with the word resistance. What does a resistance mean? Resistance होता है obstacle to the flow of current. जैसे इस कंडक्टर में करंट सप्लाई हो रहा है, अब तुमने क्या करा, कोई ऑब्स्टिकल लगा दिया, यू विल मेजर दैट ऑब्स्टिकल जो कि आपका फ्लो ऑफ करंट को रोक दे. तो दैट इज व्हाट योर रेजिस्टेंस. So I think this is clear what is resistance over here. So this particular formula, we'll see the formula of it also. So formula is been there, R is equal to this thing upon length upon area of cross section, है ना. यही बात है ना, रेजिस्टेंस हो गया आपका, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया और ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया. और यू कैन सॉरी, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका दिस थिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, ये लेंथ हो गया और ये आपका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया. अब इसको हम अपना फॉर्मूला बना लेंगे. तो फॉर्मूला दिस विल बी दिस थिंग रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल. जहाँ मैंने अभी बताया है एल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. And then in this condition what will happen when you put the value, you will get this thing, ये कह लो या फिर ये कह लो, this will be there. Now next head we will focus on specific conductance. इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होता है, जस्ट उसका उल्टा. आपने बस इसकी वैल्यू लिख लेनी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, फॉर्मूला लिख लीजिए जो पीछे आपने पढ़ा है. अब रेसिप्रोकल है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा. इसमें भी आप लिख सकते हैं एल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस 1 अपॉन आर. ठीक है. So basically the specific conductance is also defined as a conductance of a solution taken in a cell whose electrodes are at unit distance from each other and each having an area equal to 1 centimeters square. It is donated by, I have given you the symbol. So it has the unit also, so please write down the unit. Ohm minus 1 centimeter minus 1 or Siemens centimeter minus 1. This is the unit of it which you can easily write down. ठीक है. मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की भी यूनिट बता देती हूँ. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, इट विल बी ओम सेंटीमीटर. ठीक है, क्यों न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसीलिए हमें ये करना पड़ता है. सो प्लीज़ चिल्ड्रन, ये आप इस पॉइंट को, डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट है दिस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये क्या होता है, अब यह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज बीइंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज बीन देयर. तो ये बेसिकली जो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं, और ये रिलेट करता है द कंडक्टेंस ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स
that are placed 1 centimeter apart from each other and large enough to contain between them the whole of the solution. ठीक है, I am writing the definition what I have speak. So this is the definition which you can learn. You can learn the units also of it. Now we will see the relationship between these two, your equivalent conductance and your specific conductance. तो वो भी एक आप रख सकते हैं, एक रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, वो होता है इस तरह से, ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है इन मिलीलीटर्स, दिस इज़ बीन एक्सप्रेस। तो वॉल्यूम जो होता है बेसिकली आप इसको और भी लिख सकते हैं। अगर हम सपोज करो वॉल्यूम इज़, आई एम राइटिंग इट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing 1 gram equivalent of electrolyte ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ml में। अब सपोज करो हम थोड़ा यही फॉर्मूला जो है चेंज कर दें। सपोज नाउ आई एम टेकिंग वॉल्यूम इन दिस थिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिर क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन of the electrolyte is C gram equivalent per liter। तो उस कंडीशन में और देन वॉल्यूम ऑफ द solution containing 1 gram इक्विवेलेंट विल बी, क्या हो जाएगा आपका 1/c लीटर्स और 1000/c, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला जो है चेंज हो जाएगा आपका, इट विल बी लाइक दिस। नाउ इट इज़ बीन चेंज, राइट। एंड c इज, आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर, c विल बी द concentration of solution expressed in gram equivalent लीटर -1, जो कि बेसिकली किसके बराबर होता है, नॉर्मेलिटी। अब सपोज करो तुम्हें सी की वैल्यू नहीं दी रही, नॉर्मेलिटी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट इज योर मोलर कंडक्टेंस। Now next is molar conductance. It is defined as a conductance of the volume of a solution which contains 1 mole of the solute। तो जैसे आपने भाई सीधी बात है, यहाँ पे कंडक्टेंस आपको देखना है, आपने किसी कंडक्टर में सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। और वो जो सोल्यूशन जो आपने भरा है वो भाई जाहिर सी बात है किसी सॉल्यूट से बनाया है, और जो सॉल्यूट है वो किसका है, 1 मोल सॉल्यूट है वो, ठीक है। उसका आपने सोल्यूशन बनाया रखा है। और आपको याद रखना है कि दिस पर्टिकुलर थिंग्स इज बीन प्लेस बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स एंड देयर आर दो। अब इसी के अंदर जैसे मैंने ये बनाया रखा, आप सपोज करो आपने एक सोल्यूशन इस तरह से बनाया है और इसके अंदर आपने है ना अपना 1 मोल सॉल्यूट का सोल्यूशन बनाया रखा है, ठीक है। अब आपने क्या करा, 2 इलेक्ट्रोड प्लेस करें। दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होनी चाहिए, ठीक है, अपार्ट, और पैरेलली प्लेस्ड होनी चाहिए। अब उसमें देखना है आपको कि दिस पार्ट, उसमें जो आप कंडक्टेंस निकालोगे पर्टिकुलर सोल्यूशन का, उसी को आप कह देते हो मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैनर, यूनिट इज़ बीन गिवन टू अस। नाउ देयर इज़ अ रिलेशनशिप ऑल्सो, बट बिफोर दैट आई विल जस्ट रीड आउट द डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज अ कंडक्टेंस of the volume of the solution which contains 1 mole of the solute and is being placed between 2 parallel electrodes that are kept 1 centimeter from each other apart and hence sufficient area that holds the whole of the solution. Now next is their relationship also we have to see, because relationship इसीलिए important है, numerical relationship में ही आते हैं, ठीक है, between your molar conductance and your स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे पहले पढ़ा था वैसे ही आज है। तो ये है आपका दिस थिंग, योर मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें तो पता ही है कौन क्या है। ये आपका मोलर कंडक्टेंस है
और ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन दिस पॉइंट मोर डिटेलिंग फॉर्म, वेयर V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम containing 1 mole of electrolyte if the concentration of a solution is this thing, क्योंकि मोल पर लीटर पे हो जाएगा ये, ठीक है। देन वॉल्यूम of the solution containing 1 mole of the electrolyte will be 1 by C liters और 1000 by C। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये आपका मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन C हो जाता है। ठीक है, C जो है वो बेसिकली, क्योंकि ये अब ये कॉन्सेंट्रेशन, इसको भी समझ लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है जो कि विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर किसके बराबर होता है? मोल पर लीटर जो होता है वो आपका मोलैरिटी के बराबर होता है। ठीक है, मोलैरिटी की ये यूनिट होती है। तो आप अगर ये चीज़ नहीं गिवन है C की वैल्यू, तो आप सिंपली मोलैरिटी अगर गिवन है तो आप इसकी जगह आप मोलैरिटी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव वन मोर रिलेशनशिप बिटवीन योर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड योर मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, so it's been represented by in this manner। अब इन दोनों का मतलब तो पता ही है। अब Z क्या है? Z is number of individual charges that are being carried by the ions of the electrolyte। So I think this much is clear to you that what they are asking you. So please learn all these relationship, because we have to do the numerical part on these way in these parts only। So let's work on it, let's see few numericals on it। Now children, a few more things we have to see। sometimes है ना, देखो वैसे तो कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि वो न्यूमेरिकल में कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन करते हैं, कभी नहीं देते हैं। तो वो थोड़ा सा छोटी मोटी डेफिनेशन हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कंडक्टेंस हमें मालूम है कि एक फ्लो ऑफ करंट को जज आप कर रहे हैं, तो ये बेसिकली 1/R होता है ना। तो मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला में कभी क्या नहीं गिवन है, क्योंकि सेल कांस्टेंट वगैरह सब हट चुका है। कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कभी अगर बाई चांस आ जाए इस पे न्यूमेरिकल, क्योंकि पहले ही कोर्स में थे, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए, कभी कभार वो पूछ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कभी कभार अब हट चुका है तो नाउ थिंग्स विल बी चेंज्ड, बट सेल कांस्टेंट है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक, जैसे आपका कंडक्टर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। ठीक, तो these formulas you have to remember, but we will not focus on this thing, we will just focus on our part। So I am writing one numerical। Now the numerical says the specific conductance of 0.01 m solution of acetic acid at 298 Kelvin is this much। Calculate the molar conductance। Now temperature is dummy value, because you have seen whatever the formula which I have discussed, I have not at all discussed about the temperature। So if you remember your this part, then you must be first of all our duty what things are given to us। हमें C की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू। Now if you remember class, then C value they have given you
and they are asking for the molar conductance, specific conductance. They have given you the value. So what is our duty? That we will write down the formula first. तो formula as it is है, आपको ये निकालना है. तो you just put the values, that what are the values that are coming around. ये आपकी हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 1.65 इंटू 10⁻⁻⁴. ठीक है, ये वैल्यू आपने करी है. तो व्हेन यू विल सॉल्व इट, प्लीज़ यूज़ द कैलकुलेटर फॉर दिस. सो व्हेन यू विल सॉल्व द वैल्यू, देन यू विल get an same thing, because it is the point that in our course we have to focus on the calculators, and then only we can give our answer. So it's very easy, then you can easily do it by your own also, but you will get this thing 16.5 ohm minus 1 centimeter square mole minus 1. This will be your answer. Now children, this is the second numerical, a solution of 0.1 N KCl offers a resistance of 245 ohms. Calculate the specific conductance and the equivalent conductance of the solution if the cell constant is given to you. So now our duty is find out what things are given to us. They have given you the resistance value, that is 245 ohm. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की भी वैल्यू दी रखी है, नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वो बराबर ही है, जिस चीज़ हम जान चुके हैं. ठीक है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी रखी है. सेल कांस्टेंट क्या होता है आपका, L/A होता है, जिसकी वैल्यू कितनी दे हैव गिवन यू, दे हैव गिवन 0.571 सेंटीमीटर माइनस 1. नाउ योर ड्यूटीज, बिकॉज दे हैव आस्क्ड यू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोथ. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये होता है आपका. ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि 1/R ये रेजिस्टेंस का है और ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने 1/245 इंटू ये वैल्यू आपको 0.571 दी रखी है. व्हेन यू यूज़ द कैलकुलेटर यू विल गेट दिस वैल्यू. ठीक है, कैलकुलेटर बेटा हम जल्दी इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि कैलकुलेटर से सब कैलकुलेट करके पहले से रखा रहता है. सेंटीमीटर माइनस 1. ठीक है, सो दिस थिंग. नाउ दिस पार्ट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यू नो द फॉर्मूला बाय योर ओन ऑल्सो. अब इतना तो सीख ही चुके हैं हम. तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1000/C इंटू दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस, पुट द वैल्यूज़. स्पेसिफिक कंडक्टेंस की आप निकाल के आ ही रहे हो, तो कोई ऐसा इशू नहीं है. कॉन्सेंट्रेशन की ऑलरेडी वैल्यूज हमने गिवन ही है. इंटू ये दिस इज़ योर दिस थिंग वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड जस्ट नाउ, 2.33 इंटू 10⁻⁻3. So what you will get the answer, 23.3 ohm minus 1 centimeter square equivalent minus 1. So I hopefully these are the numericals which we have done. We'll discuss other numericals also in other video. Plus please meanwhile you work on these types of numericals.